Hello, ma'am. Hello. Yes, dear. Hello. Can you listen me? Yes. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you listen me? Yes, I'm waiting so that Yes, ma'am. at 1:45 till we have to wait so that rest student can also join. That's great. You have joined at a right time. "54" are with me right now. 76, ma'am. 74, ma'am. 76. 76. Why always it shows less in my screen? I don't understand. Presenters इसमें दिखा रहा है 56 right now. I think it will update. है ना? Slowly information. मोबाइल में ज्यादा दिखाता है ना? ऐसा लग रहा है मुझे. मोबाइल में काउंट 79 दिखा रहा है. Yes, very rightly said. हाँ, मोबाइल ma'am. में काउंट लैपटॉप में आते आते थोड़ा स्लो होता है ऐसा लग रहा है. Okay, it is a strength right now. हेलो मैम. Yes. मैम मेरे घर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी. Okay, let it be. See, sir ने बोला है, but I do feel the consumption of GBs is very high when you keeping on your that camera. So for whom it is feasible? Exactly, ma'am. I understand, dear, because you have to attend 4 classes per day. So to my understanding, see, sir is very strict. He is also right at his part कि बच्चे सिर्फ ऑडियो ऑन करके अपना कुछ काम करते रहते हैं, सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, है ना? तो इस वजह से सर ने ये बताया है. बट जिसके भी यहाँ पर इंटरनेट इशू है और आपको लगता है कि आपका इंटरनेट कि जो जीबीज हैं वो खत्म हो रहे हैं और क्लास उसकी वजह से सफर होगा, तो वो लोग अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं. फाइन. लेकिन जिसके पास एनफ डेटा है, जिसको ऐसा लगता है कि उसके पास इतने जीबीज हैं और वो एनफ है डेटा एंड दे कैन सस्टेन, तो आप वो चालू रख सकते हैं या बीच बीच में आप 2-4 मिनट के लिए भी स्विच ऑन करके ऑफ कर सकते हैं. वो भी एक तरीका है, ताकि बीच बीच में एटलीस्ट मुझे कुछ तो दिखेगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे जो हैं वो लाइव हैं, दे आर विद मी. Okay, this is the reason. Okay, ma'am. Thank you. Fine. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. So let me see how many students are present now. 82 are with us. Let me take 30 seconds more to see my students. Then we will start our class. Fine. Okay, let us start our session. So let me share the screen with you all. One thing I would like to say that when any teacher is asking you something, so you please try to participate, because it gives a notion that whatever you are learning, you should be able to state it. है ना? आप उसको बता पाए बेटा, वो बहुत जरूरी है. बिकॉज अभी ऑनलाइन में हम लोग इतना आपको जो प्रैक्टिकली जो हम आपकी क्लास में जाके जिस तरीके से पढ़ाते थे उतना पॉसिबल नहीं है, तो आपको कैप्चर करना मुश्किल होता है कि हमारे बच्चों को कहाँ तकलीफ है ना? तो इट इज बेटर कि हमारे बच्चे जो हैं वो
आंसर करें या नहीं आता है तो भी बताएं कि दिस इज वेयर वी वांट मोर क्लैरिफिकेशन। अरे ये कौन सा वाला है, 6th वाला कहाँ है? जस्ट होल्ड ऑन बेटा। 6th लेटेस्ट वाला अटैच नहीं हुआ है क्या? जस्ट वेट बेटा, मैं 1 मिनट चेक करती हूँ। अभी जो क्लास है उसका पीपीटी ओके मैंने डाउनलोड नहीं किया है, जस्ट मिनट। ओके नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं। इट विल कम ऑन योर स्क्रीन। Yes, ma'am. कैन यू सी? यस, दिस इज द Yes, लेटेस्ट वन। Yes. Yes, Yes, ma'am. okay. I mailed myself, but I forget to download it. Okay, it happens. Okay, let us start our today's presentation. Yesterday also we were discussing about some of the major points, है ना? कल भी हमने बात की थी. Now let me begin again. आपसे मैं already discuss कर चुकी हूँ. Who are the users of evaluation result? इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट होता है उसको कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? Who make use of the evaluation results? Ma'am, the teachers, Teachers, then the students, students, and pupils, school Administrator. administrators. yes, yes, very rightly said. We know the people who are in education system actually, है ना? जो लोग education system में से जुड़े हुए हैं और वो कौन है? Students हैं, teachers हैं और administrators हैं. They are using the evaluation results. Fine. Now, after the evaluation program, the results of the evaluation should be reported or conveyed to the students, teachers or administrators so that they can use them properly. है ना? ताकि वो उन रिजल्ट्स को सही तरीके से यूज कर सकें. नाउ अगर किसी को आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करना है, चाहे आपको स्टूडेंट को देना है या आपको टीचर्स को देना है या फिर आपको किसी एडमिनिस्ट्रेटर को देना है, तो आप जो रिजल्ट तैयार करके उसको प्रेजेंट करेंगे, सो that report of the assembled report of all the results of a student, उसको एक proper way से आपको represent करना पड़ेगा. The reason is the report of evaluation should be such that the information what you want to convey वो ठीक तरीके से convey हो, है ना? अगर स्कूल में जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है बच्चों की, अगर हम उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या उसको हम सही तरीके से कन्वे नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता लगेगा कि इवैल्यूएशन रिजल्ट्स क्या हैं? आई थिंक उनको पता नहीं लगेगा, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है. देन ओनली द वन हु इज रीडिंग द रिपोर्ट ऑफ इवैल्यूएशन विल एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट चाइल्ड. ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Is this point clear? Okay. So in order to know how that report of evaluation should be constructed, ये जानने के लिए कि एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, we should know its characteristics.
है ना, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। सो इवैल्यूएशन रिपोर्ट इज नथिंग बट योर रिपोर्ट कार्ड। अगर मैं उसको एक सिंपल साधारण शब्दों में कहूं तो इवैल्यूएशन रिपोर्ट को हम सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ रिपोर्ट कार्ड। ओके, और we in schools we call them as a report card, but when you come to the higher education we call them as mark sheets, है ना, आप उसको मार्क शीट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दैट इज द इवैल्यूएशन रिपोर्ट, वही आपके इवैल्यूएशन रिपोर्ट मानी जाती है। इज आई एम क्लियर विद द स्टेटमेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Okay. ma'am. Now, let me give you some examples. The report of the results of evaluation should include information with respect to all aspects of development of the students. है ना, that is report card should be comprehensive. This is the first characteristic. पहली characteristic क्या है एक रिपोर्ट कार्ड की, कि एक रिपोर्ट कार्ड में सभी एस्पेक्ट्स जो हैं उसका जो हमने मूल्यांकन किया है उसके बारे में हम उसमें नोंधाएं या उसके बारे में लिखें। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स। आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट किया होता है, जैसे आपने फिजिकल एस्पेक्ट को इवेल्युएट किया है ना, फिजिकल एस्पेक्ट में आपने आइडेंटिफाई किया कि बच्चे को किस किस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, या उसको कोई पर्टिकुलर गेम्स में कोई प्राइज मिला है, या कोई उसने कोई स्कूल लेवल या रीजनल लेवल या नेशनल लेवल पे कोई गेम खेला है तो उसका कोई प्राइज कोई अचीवमेंट है उसके बारे में आपने लिखा है ना, या कोई किसी स्टूडेंट का जैसे आई साइट है, किसी बच्चे को आई साइट का प्रॉब्लम है तो वो भी रिपोर्ट कार्ड में कई बार स्कूल्स में लिखा जाता है कि देयर इज सम आई इशू विद द स्टूडेंट, काइंडली टेक देम टू डॉक्टर। तो इस टाइप के रिमार्क्स भी टीचर्स रिपोर्ट कार्ड में देते हैं स्कूल्स में। ओके, या कोई बच्चा ठीक से लिखता नहीं है, दे आर राइटिंग वर्ड्स इन या लेटर्स को ठीक तरीके से कोई नहीं लिख रहा है, तो वो भी उसके बारे में हम रिपोर्ट करते हैं स्कूल में टीचर्स कि एक बच्चा बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, या लेटर को बी को डी लिखता है, ठीक है ना, एम को डब्ल्यू लिखता है, इस टाइप से कुछ चीजें हैं, तो उनके बारे में भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया जाता है। सो दैट इज रिलेटेड विद द फिजिकल एस्पेक्ट, है ना। सेकंड, इट कुड बी द इमोशनल एंड एडजस्टमेंट एस्पेक्ट, कि कई बार बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, they are highly sensitive or they are not adjusting or they are very nicely adjusting, so उनका relationship स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, या दूसरे लोग जैसे पियून्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके साथ किस टाइप का है उसके बारे में भी उनके बारे में लिखा जाता है। मोर और लेस उनके हॉबीज के बारे में भी लिखा जाता है, हाउ डू स्टूडेंट्स स्पेंड देयर टाइम इन स्कूल, जैसे कुछ गेम्स पीरियड है, then you have some SUPW period, then you have some time leisure, खाली पीरियड भी होते हैं, कोई एब्सेंट है टीचर, तो बच्चा क्या परफॉर्म करता है, हाउ डू दे ट्राई टू स्पेंड देयर टाइम, है ना। या फिर बच्चों को पूछा भी जाता है कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू इन दिस फ्री क्लास, तो बच्चे बोलते हैं मैडम वी वुड लाइक टू गो फॉर स्टोरी रीडिंग, या हमको लाइब्रेरी लेके जाइए, या हमको गेम्स खिलाइए, तो उसके बारे में भी उनके इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में लिखा जाता है। मोर और लेस सम स्टूडेंट्स दे आर वेरी गुड इन लिटरेरी एक्टिविटीज। लिटरेरी एक्टिविटीज मीन्स स्कूल में जो अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन होता है, एलोकेशन कंपटीशन होता है, देन ड्राइंग कंपटीशन होता है, तो बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी कुछ बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। देन सब्जेक्ट का अचीवमेंट लेवल तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, जो हर एक जितने भी सब्जेक्ट या विषय बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उसमें उनका कितना स्कोर है, उनका अचीवमेंट लेवल क्या है, वो हर एक सब्जेक्ट का उसमें होना चाहिए। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्कूल्स में मापा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है ना। तो उन सभी एस्पेक्ट्स को जब हम कलेक्टिवली एक रिपोर्ट कार्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो वो एक रिपोर्ट किस टाइप की कहलाती है, वो एक
कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कहलाती है। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए स्टूडेंट, और हर एक एस्पेक्ट को उसमें प्रोविजन दिया है कि वहां पर टीचर उसके बारे में लिख सके, उसके बारे में रिपोर्ट कर सके। सो मे आई क्लियर विद दिस पार्ट? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, let me ask to you one simple question. Why it is necessary to report all the aspect? ऐसा क्यों जरूरी है? सिर्फ हम बच्चों के स्कूल में जो मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स हैं, वो लिख के अगर हम दे दें तो क्या वो सफिशिएंट है? No, ma'am. Nahi, ma'am. Because Why- school is why all about you the feel- overall development. Yes, the school is trying to give overall development of the child, है ना? ये स्कूल का एक उद्देश्य है, ये स्कूल का एक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। जब हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ऑल द एस्पेक्ट्स of the student should be taken into consideration. तो आपको हर एक एस्पेक्ट में क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजेस है, वो जानने का हक पेरेंट को या एडमिनिस्ट्रेटर को या स्टूडेंट को खुद को भी है कि हाउ आई एम प्रोग्रेसिंग। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई द रिपोर्ट कार्ड शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, मे आई क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Okay, let me go for the second point. Okay, the report card should be understandable. It will come on your screen. Just give me a few seconds. The second point states that the report card should be understandable. Understandable का मतलब यहाँ पर अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन एक टीचर बताना चाहता है वो ठीक से कन्वे हो, रिप्रेजेंट हो। जैसे कि मैं आपसे एक उदाहरण आपको देती हूँ। लेट मी टेक वन इलस्ट्रेशन। आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, ओके, और हमने 100 मार्क्स का एग्जाम लिया है और आपकी क्लास के सभी बच्चों के स्कोर्स आ गए हैं और एक स्टूडेंट का स्कोर है 85, है ना? जिस स्टूडेंट का स्कोर है 85, उस स्टूडेंट का जो प्लेस है क्लास में वो 10th पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है वो? 10th पोजीशन पर है। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब उससे ऊपर 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर 85 से ज्यादा हैं। फाइन। नाउ 50 में से 10 बच्चों के स्कोर ऐसे हैं जो कि 85 से अबव हैं। फाइन। सो अभी अगर आप सिर्फ हम वहां पर स्कोर दे दें कि आउट ऑफ 100 द स्टूडेंट गेन 85 स्कोर, सो आपको उससे स्टूडेंट का बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है क्लास में। कैन यू गेट सम इंफॉर्मेशन? No. उसके पेरेंट्स को पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। इट मे बी वो घर जाके बोले कि मम्मी आई डिड टॉप, मैंने तो क्लास में टॉप किया है ना? बच्चा बोल सकता है, मिसगाइड कर सकता है। Yes, ma'am. अगर Yes, आपने ma'am. पोजीशन नहीं बताया है बच्चे का तो पेरेंट बिलीव भी कर सकते हैं ना कि 100 में से 85, इट मे बी ही इज एट द टॉप पोजीशन, हो सकता है। फाइन। Yes, So yes, ma'am. it is very important to give the rank to the student, है ना? रैंक से ये पता लगता है कि आपके कंपेयर में जो दूसरे स्टूडेंट हैं, आप ही की क्लास में जो 50 स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट में से आप किस पर्टिकुलर पोजीशन पर फॉल करते हैं, है ना? तो अगर क्लास में 9 बच्चे और ऐसे हैं जो उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, इट मींस इफ यू कैन डू लिटिल बिट मोर हार्ड वर्क, यू कैन ऑल्सो गेट better marks than 85. 85 is not a bad score, but in comparison to rest of the students, you can still do better because there is a scope of still more improvement. Can you get this point? Yes, ma'am. But I Yes, have one. ma'am. Yeah. Ma'am, like in schools right now, they are giving grades. Grading system is there. Yes. So, Yes. ma'am, like in this point, how we link? Yes. लिंक सी ग्रेडिंग सिस्टम का रीजन यही है
कि ग्रेडिंग सिस्टम आपको जो बोलते हैं ना थ्रॉट कटिंग कंपटीशन, उससे बचाता है। ग्रेडिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसी से आया कि एक समय ऐसा आ गया था कि 1 मार्क के लिए भी पेरेंट इतना ज्यादा बच्चे को प्रेशराइज करने लगे थे पढ़ने के लिए कि अगर पड़ोसी के बच्चे के 92 आए हैं और आपके बच्चे के 91 आए हैं तो पेरेंट्स का इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था बच्चों पर कि दे स्टार्ट मतलब बच्चे के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगा था, है ना। वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, फिर है ना पेरेंट्स से दूर रहना पसंद करते थे या पेरेंट्स के साथ में झगड़ा करते थे, है ना। एक टाइम आता है बच्चों का फ्रस्ट्रेशन लेवल टूटता है। सो वो सब चीजों को रोकने के लिए, या सम टाइम स्टूडेंट्स दे फील सो बैड कि कुछ स्टूडेंट सुसाइड भी कमिट कर लेते थे, है ना, बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंस। सो ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज में रिवीजन लाया और दे हैव ब्रॉट द ग्रेडिंग सिस्टम। सो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, एक रेंज डेवलप होती है ना। जैसे 95 से अबव जिनके हैं उनको O+ ग्रेड दिया गया। अभी चाहे 97 मार्क्स आए या 98 आए या 99 आए, आपको O+ ग्रेड ही मिलेगा। सो उसमें बहुत ज्यादा थ्रॉट कटिंग कंपटीशन वाली जो भावना है वो कम हो जाती है। मे आई क्लियर विद दिस पॉइंट? यस मैम बट अभी भी स्कूल्स में हम लोगों को परसेंटेज तो दिए जाते हैं ना, ग्रेड देते हैं, बट साथ में नो परसेंटेज ओवरऑल आती है, आप विद इन सब्जेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, परसेंटेज कैसी होती है, आपके 6 सब्जेक्ट का फाइनल स्कोर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा। उसका रीजन यही है, जब मेरिट बनता है या कोई किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको लेना होता है तो एक बेंचमार्क तो चाहिए कि हम किस तरीके से आप ये डिसीजन ले सके, है ना। उसके लिए गवर्नमेंट ने परसेंटेज दिया, लेकिन जो ग्रेड्स हैं वो हर एक सब्जेक्ट में ग्रेड डाल दिए, वहां पर उन्होंने मार्क्स छुपा दिए। डिड यू गेट माय पॉइंट? लोग कभी भी परसेंटेज जल्दी से कंपेयर नहीं करते, लोग हर एक सब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। भाई सोशल साइंस में इसके 92 आए तो तुम्हारे 87 क्यों आए? लोग यहाँ कंपेयर करते हैं, बच्चे को कंपेयर करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, इसको और 2 घंटे पढ़ो, उसको और 4 घंटे पढ़ो। डिड यू गेट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My point. Ma'am, your voice is not audible. So, हाँ मैम, you are not audible. Hello ma'am. I think there is some issue with the connectivity. It gives sound again and again. Is it okay now? Yes, ma'am. Yeah ma'am, it is Yes, okay. ma'am. Okay, fine, that's great. So यहाँ पर जो understandable की बात है, अगर हम स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस जो है उसमें सिर्फ मार्क्स देने के साथ में अगर रैंक भी बता सकें, है ना, जैसे आपने क्लास में, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें और आप इम्प्रूव कर सकें। द पर्पस हियर इज यू कैन इम्प्रूव इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फाइन। सो रिपोर्ट कार्ड में अगर रैंक प्रोवाइड किया गया है तो इट विल बिकम इजी फॉर द पर्सन हु इज रीडिंग द रिपोर्ट कार्ड कि उसको परफॉर्मेंस बच्चे की ठीक से पता लग सके। फाइन। सो एक होता है सब्जेक्ट वाइज रैंक और एक होता है ओवरऑल रैंक। So both the kinds of rank, if they are provided, it become easy for the one who is reading that report card or evaluation report. Okay. One more thing. Suppose आपके जो स्कूल में है या आपने देखा होगा क्लासेस या डिवीजन ऑफ स्टूडेंट भी मेंशन किया जाता है ना। स्टूडेंट का 83 मार्क्स आया, 94 आया, 70 आया, जो भी परसेंटेज बच्चे का आता है उसमें उसको अगर हम क्लास या डिवीजन मेंशन करते हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है या डिवीजन डिस्टिंक्शन है, अगर वो भी हम मेंशन करते हैं तो इट बिकम इजी फॉर वन who is reading the report. Immediately उसको पता लगता है, चाहे वो सब्जेक्ट के मार्क्स ना भी देखे, लेकिन डिवीजन या क्लास को रीड करने से उसको एक ओवरऑल आइडिया मिलता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का। फाइन। सो जैसे अभी प्रिंसिपल है, ही वांट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट फॉल अंडर फर्स्ट क्लास,
how many students they fall under second class, how many students they are getting distinction. तो यहाँ से immediately प्रिंसिपल को भी पता लगेगा, है ना, कितने बच्चे किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं. तो रिपोर्ट कार्ड में अगर डिवीजन या क्लास भी मेंशन हो, इट वुड गिविंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट. देन इसमें ग्रेड्स की भी बात की गई है कि अगर हम ग्रेड्स भी देते हैं तो भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड. और ग्रेड्स एक्चुअली इट इज, यू कैन से इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कोर्स, है ना. स्कोर्स को ही हम ग्रेड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं बिकॉज एक रेंज ऑफ स्कोर्स को हम एक पर्टिकुलर ग्रेड से सिग्निफाई करते हैं या इंडिकेट करते हैं. फाइन. जैसे स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग स्कोर मोर देन 90, they are getting A grade. Students getting score between 80 to 89.99, उसको आप B grade करते हैं. So like that you can divide your grades. Fine. And किस आप उससे जब ग्रेड डिफाइन करते हैं या आप क्लास डिफाइन करते हैं तो रिपोर्ट कार्ड में उसको मेंशन कीजिए. A grade का क्या मतलब है? Should I understand student has scored more than 80 mark or should I understand more than 90 marks? So आप कभी भी देखिए मार्कशीट देखिए या फिर आपके रिपोर्ट कार्ड देखिए, वो उसके पीछे एक छोटा सा टेबल बना होता है जिसमें वो उसका मीनिंग लिखा होता है. A grade means what, B grade means what, है ना, C grade means what. So उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहां पर मेंशन होता है. तभी आप बोल सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट कार्ड properly understandable है. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. One more thing, yes, one more thing. Sometimes schools में तो कम होता है, लेकिन जब बड़े बच्चे होते हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, उनके कुछ पेपर्स का एब्रीविएशन यूज होता है ना. नेम ऑफ द पेपर इज सो लेंदी, तो वो आपकी इवन 12th क्लास की मार्कशीट में भी मैंने देखा है ऑर्गेनाइजेशन को ORG डॉट लिखते हैं, है ना. अकाउंट्स को ACC डॉट लिखते हैं, है ना. तो कुछ मार्कशीट्स में मैंने देखा है कि पेपर का नाम कंप्लीट नहीं होता, है ना, या मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं उसमें मैक्सिमम को MAX डॉट लिखते हैं, है ना. ऑब्टेन्ड मार्क्स को OBT डॉट लिखते हैं. सो आपकी मार्कशीट में जो भी एब्रीविएशंस यूज हुए हैं या रिपोर्ट कार्ड में जो भी एब्रीविएशंस हैं, उनका भी एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड के बैक साइड में या किसी एक पर्टिकुलर पेज पे होना जरूरी है ना. बिकॉज एवरी पर्सन हु इज रीडिंग द रिपोर्ट कार्ड मे नॉट बी नोइंग द एब्रीविएशन विच यू हैव प्लेस्ड. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो पेपर के नाम है Yes, या ma'am. कुछ हेडिंग्स हैं, वो ठीक से मेंशन करना, उनके एब्रीविएशंस प्रोवाइड करना, ये भी जरूरी है. अभी मैं आपको बताती हूँ, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं ना, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी के होंगे. तो वहां पर एक होता है, एक वर्ड आप यूज करते हैं CBCS, है ना. आपकी मार्कशीट में ऊपर लिखा है CBCS सिस्टम. सो CBCS का मीनिंग क्या है? इट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, है ना. हाँ, मैम. है ना. क्रेडिट तो सिस्टम. आपको, हाँ, आपने जो एब्रीविएशन यूज किया आपकी मार्कशीट में, वो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी रीडर को पता लगेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं. और एक और है SGP होता है ना, सेमेस्टर वाइज आपका होता है. और एक हाँ, है ना, उसमें फिर क्यूमुलेटिव स्कोर, एक क्यूमुलेटिव स्कोर होता है और एक Great सेमेस्टर point. वाइज स्कोर होता है ना. तो वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, व्हाट डज इट इंडिकेट. फाइन. सो एक रिपोर्ट कार्ड जो होता है दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. पहली बात, रिपोर्ट कार्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए. उसको जब आप पढ़ें तो आपको इंफॉर्मेशन इजीली एंड इन ए कॉम्प्रिहेंसिव वे अलोंग विद दैट मीनिंगफुल वे आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रिपोर्ट कार्ड को किस तरीके से फ्रेम करते हैं. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. जब हम, कई बार हमारे पास ऐसी मार्कशीट्स आती हैं जब हम एडमिशन प्रोसेस में होते हैं कि हमको स्टूडेंट क्या टोटल मार्क्स जो होते हैं ना सभी सेमेस्टर्स के बाद, उसको ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में इतने हैं, सेकंड में इतने हैं, थर्ड में इतने हैं, फोर्थ में इतने, लेकिन टोटल एग्रीगेट कहीं पर नहीं दिया है.
सो ऐसा नहीं होना चाहिए. एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेमेस्टर शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड. ठीक है, एग्रीगेट ऑफ पर सेमेस्टर शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड. क्योंकि वन हु इज रीडिंग द रिपोर्ट कार्ड, वो किस पर्पज से रिपोर्ट कार्ड को स्टडी कर रहा है या रीड कर रहा है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग भी रिपोर्ट कार्ड थोड़ा फ्रेम होना चाहिए. जैसे परसेंटेज है वो होना चाहिए, रैंक है, डिवीजन है वो होना चाहिए, आपका उसमें एब्रीविएशंस यूज किए हैं तो वो कहीं ना कहीं मेंशन होने चाहिए, आपने ग्रेड्स दिए तो ग्रेड्स का मीनिंग उसमें होना चाहिए. कई बार देयर इज वन थिंग, हाउ डू दे कैलकुलेट सर्टन फिगर्स, कुछ फिगर्स होते हैं जो वो कैलकुलेट करते हैं. जैसे आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया है वहां पे, बट हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दैट परसेंटेज, है ना. अभी देयर इज वन टर्म, आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, SGPA करके कुछ Hello, होता है ma'am, ना. please. हेलो 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 मैम, प्लीज हेलो, रिपीट, प्लीज रिपीट CGPA. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. CGPA ना, ये CGPA, ma'am. Yes, हाँ ma'am. CGPA होता है ना, क्यूमुलेटिव Cumulative, स्कोर yes. होता है. लेकिन वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो MS यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट्स है उसके बैक साइड पे वो फॉर्मूला दिया हुआ है, हाउ दे हैव कैलकुलेटेड दोज numbers or figures in that marksheet. तो कभी कभी स्टूडेंट जब यहाँ पर या कहीं और पर ये मार्कशीट को सबमिट करते हैं, and if it is some admission process, so they should also give the that print of back side. उसका बैक साइड का प्रिंट भी दीजिए मार्कशीट का. समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड कि आपने तो स्कोर्स तो आपने प्रोवाइड कर दिए, लेकिन वो स्कोर्स किस बेसिस पर कैलकुलेट किए गए हैं वो भी आपको बताना चाहिए. फाइन. सो बिकॉज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर इट बिकम इजी, okay, to understand how these values were calculated. So may I clear with this part? Understandable? यस मैम. मैम ये जो है रिपोर्ट कार्ड के अंदर, इसके अंदर हम लैंग्वेज जो है इंक्लूड कर सकते हैं ना? लैंग्वेज ऐसा है बेटा कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैज प्री डिफाइंड कि आपकी जो मार्कशीट है वो किस लैंग्वेज में होगी. मोस्ट ऑफ द जो नेशन या स्टेट लैंग्वेज जो होती है ना, वही प्रेफर्ड होती है. जैसे अभी इंडिया में इफ यू सी मोस्टली रिपोर्ट कार्ड्स बोलिए या फिर आपकी मार्कशीट बोलिए, दे आर एक्सेप्टिंग इन इंग्लिश, है ना. कुछ स्टेट्स में अगर आप देखिए, जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका मदर टंग हो सकता है उस इंस्टीट्यूशन का, लेकिन जो मार्क्स होते हैं, बिकॉज दैट मार्कशीट और रिपोर्ट कार्ड कैन बी यूज्ड बाय एनी पर्सन in different country, in different state. So the medium of जो जिस लैंग्वेज में आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसको कोई भी पढ़ के समझ सके. फाइन. सो अंडरस्टैंडेबल में लैंग्वेज अगर आप बोले तो आप स्कूल्स में भी देखिए, गुजराती मीडियम स्कूल्स जो होते हैं, क्या वो गुजराती में उनका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं? क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है? यस मैम. सी अगर वो स्कूल रिपोर्ट कार्ड गुजराती मीडियम स्कूल है और वो गुजराती में बनाते हैं, एंड उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है. ऐसा हो भी सकता है कि जो स्कूल है वो सपोज कर्नाटका में तेलुगु यूज करते हैं तो वहां पर उनका रिपोर्ट कार्ड तेलुगु में हो, बिकॉज वन हु इज यूजिंग द रिपोर्ट कार्ड इज इम्पोर्टेंट. उसको कौन यूज कर रहा है? वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स. लेकिन कई बार रिक्वेस्ट आती है, आपने देखा होगा कि मार्कशीट को पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने की भी रिक्वेस्ट आती है कि दे आस्क यू टू ट्रांसफॉर्म दिस सर्टिफिकेट और दिस डॉक्यूमेंट इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. सो इट इज प्रेफरेबल कि 10th का, 12th का एंड डिग्रीज सर्टिफिकेट जो होते हैं, टू माई अंडरस्टैंडिंग दे ऑल कम इन इंग्लिश लैंग्वेज. In our country, at least I can say. Yes ma'am, that is true. Fine. But Yes. ये जो but इंटरमीडिएट में में जो होता है, हाँ, आप 10th क्लास का मार्कशीट देखिए, वो उसमें ही होगा, है ना. लेकिन उससे अगर आप 7th, 8th, 9th देखें तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल्स अथॉरिटी कि वो किस लैंग्वेज में डिसाइड करते हैं. इसके लिए तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, एडुकेटर्स जो हैं, दे हैव द लिबर्टी टू टेक द डिसीजन कि किस लैंग्वेज में रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए. सो मे आई क्लियर विद दिस पार्ट? यस मैम. एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई किए गए हैं और उनके नाम, और सामने सिर्फ ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे हुए हैं,
क्या लिखा है? ऑब्टेन्ड मार्क्स। सपोज फर्स्ट पेपर में उनके, हाँ, स्टूडेंट है उसके हिंदी में है 72, इंग्लिश में है 48, साइंस में है 59, मैथमेटिक्स में है 86 एंड सोशल साइंस में है 75। और नीचे एक लिखा है कि फिजिकल एजुकेशन में 20 दिए हैं। नाउ व्हाट यू विल ड्रॉ इंफॉर्मेशन विद दिस? क्या ये इंफॉर्मेशन से कुछ आप मैम, समझ पा रहे हैं? मैम ये हाँ? हाफ इंफॉर्मेशन टोटल मार्क्स मैक्सिमम एक, मार्क्स। यस, सिर्फ ऑब्टेन्ड मार्क्स नहीं बल्कि वो मार्क्स कितने में से दिए गए हैं, व्हाट इज दी हाईएस्ट स्कोर आप बोल सकते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो भी बताने जरूरी है। हाँ, क्योंकि लास्ट का जो एक पेपर है जिसमें 20 मार्क्स दिए हैं, हो सकता है वो पेपर 25 मार्क्स का ही हो सकता है वो पेपर 30 मार्क्स का हो, या हो सकता है वो पेपर 50 मार्क का है ना। इवन इन द रेस्ट ऑफ द पेपर्स वी डोंट नो कि पेपर 80 मार्क्स का था या 90 मार्क्स का था या 100 मार्क्स का था या 120 मार्क्स का था, वी डोंट नो। सो इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम स्कोर हम वहां स्पेसिफाई करें और ऑब्टेन्ड स्कोर दे। तो दोनों स्कोर देंगे तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तभी आप रिपोर्ट को ठीक से, रिपोर्ट कार्ड के स्कोर्स को ठीक से समझ सकते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडेबल। मे आई क्लियर विद दिस पार्ट? और कुछ जगह पर मिनिमम स्कोर भी दिया रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Did you get my point? कि this is a max, suppose maximum score is 100, the minimum score is 40 and the obtained score is say 76. So now it become more clear कि minimum passing criteria जो minimum score कितना है वो भी important है। So is this point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So this is how report card should be maintained, ताकि उसमें उसको समझने में, इवैल्यूएशन रिपोर्ट को समझने में आसानी हो। ठीक है, आप देखिए छोटे छोटे आजकल कंपोनेंट्स हैं वो भी हम देखते हैं। एलिमेंट्री स्कूल में आप देखिए कि बिहेवियर को वो ग्रेडिंग करते हैं, है ना। बिहेवियर लिखा है एक कंपोनेंट और आगे टीचर ग्रेड देता है ABCDE इस तरीके से। तो बच्चे का बिहेवियर कैसा है उसको भी वो दे ट्राई टू पुट इट इन दैट ग्रेड्स, फाइन। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं नाउअडेज, यू फाइंड देम, बिकॉज हमको एक ओवरऑल इवैल्यूएशन करना है, सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के करना है। तो बच्चे को हम किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो आपकी रिपोर्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव भी होनी चाहिए एज वेल एज अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए, फाइन। सो नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है, देखिए आपने स्कूल में नोटिस किया होगा कि आपके इंटरनल के मार्क्स दिए जाते थे, यूनिट टेस्ट जो होता है, फर्स्ट इंटरनल का स्कोर, देन सेकंड इंटरनल का स्कोर, देन हाफ ईयरली एग्जाम्स का स्कोर, देन वापस से सेकंड इंटरनल होता है, थर्ड इंटरनल होता है, फिर फाइनल एग्जाम होती है। इज इट ट्रू? है ना। स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम से भी पहले इंटरनल्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, एंड देन फाइनल एग्जाम होता है, फाइन। सो इट मे बी आइदर सेमेस्टर वाइज और इट मे बी एनुअली। स्कूल्स में तो अभी भी एनुअल सिस्टम चल रहा है ना। सो वहां पर किस तरीके से प्रिपरेशन होती है बच्चों की, आपके जो स्कोर्स हैं उसको हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट फेज टू द लास्ट फेज हम वहां पर मेंशन करते हैं। सो यू कैन स्टडी द ट्रेंड ऑफ द स्कोर्स। आप बच्चे के स्कोर्स का ट्रेंड स्टडी कर सकते हैं कि बच्चा इंप्रूव कर रहा है कि बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा है, या सेम सिचुएशन है, व्हाट इज द स्टेटस, फाइन। मोर और लेस सम एस्पेक्ट्स आर आल्सो लाइक दिस कि हम जैसे अटेंडेंस एक बहुत मेजर क्राइटेरिया है। आप बच्चे को देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म की अटेंडेंस टीचर लिखता है। से आउट ऑफ फर्स्ट 100 days but the student was present only in say 76 days. In the second term, out of 70 days, the student was present in say 56 days. In the third term, out of say 80 days, the student was present in say 75 days. Now आप इसको कंपेयर करेंगे कि बच्चे का जो अटेंडेंस है वो ग्रेजुअली उसका जो प्रपोर्शन है
अटेंडेंस का, वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। सो अटेंडेंस को भी ध्यान में रखा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर्स के यू कैन से परसेंटेज, हम लोगों की स्कूल रिपोर्ट कार्ड में मुझे आज भी याद है, सपोज द स्टूडेंट इज इन 9th स्टैंडर्ड, एक बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है, तो उसके पिछले 2 साल की परसेंटेज, 8th क्लास में उसका क्या परसेंटेज था ओवरऑल, और उसका 7th स्टैंडर्ड में उसका क्या परसेंटेज था, वो भी नीचे कहीं मेंशन होता है कि 8th स्टैंडर्ड में उसका जो परसेंटेज था वो 65 था, 9th में उसका 68 हुआ, और अभी 7th में उसका 65 था, 8th में उसका 69 हुआ, एंड लेट अस सी अभी 9th स्टैंडर्ड में कितना परसेंटेज आता है। फाइन। सो this kind of information which is represented in a report card which shows the gradual change in the child, है ना, yearly change हो सकता है, monthly change हो सकता है, from one internal to another internal changes हो सकते हैं, half yearly से final exams में change हो सकते हैं। वो change को study करने के लिए आपके report card cumulative होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? The report card should be cumulative means थोड़ा पास्ट का भी डेटा होगा और थोड़ा अभी प्रेजेंट का भी आपको डेटा मिलेगा, तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है या खराब हो रही है, हाउ द स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग। अगर आपके पास पिछले सेमेस्टर या इंटरनल्स का डेटा नहीं होगा, व्हाट विल हैपन, आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि पिछले इंटरनल से इस इंटरनल्स में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, May I clear upon this point? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। एक और मैं आपको आपसे बात करना चाहूंगी, एक होता है एनेक्डोट रिकॉर्ड्स। एनेक्डोट रिकॉर्ड्स मतलब होते हैं कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हम रिपोर्ट करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, क्लास में कोई बच्चा है जो कि सपोज प्रेयर में खड़ा था और वो बेहोश होके गिर गया। ठीक है, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चे को चक्कर आता है और बेहोश होके बच्चे कई बार गिर जाते हैं। तो टीचर ने ये नोट डाउन किया ऑन व्हाट डेट एट विच टाइम दिस स्टूडेंट फॉल्स डाउन। ठीक है, ये एक एनेक्डोट टीचर ने रिकॉर्ड किया। फाइन। नाउ आफ्टर से 1 ईयर और इवन 2 इयर्स, 1 या 2 साल के बाद में फिर से ये घटना हुई, है ना, कि बच्चा फिर से कभी इस तरीके से बेहोश होके गिर गया। नाउ सेकंड टाइम इफ इट इज बीइंग रिपोर्टेड, तो ये रिकॉर्ड हो सकता है कभी डॉक्टर्स को या उनके पेरेंट्स को कभी फ्यूचर में काम लगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। नो डाउट अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम भी गिरता है तो उसको मेडिकल हेल्प दी जाती है, उसको डॉक्टर को विजिट कराया जाता है, बट जो रिकॉर्ड होता है ना, वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं प्लेस किया जाता है। फाइन। द स्टूडेंट की कुछ पर्सनल चीजें भी होती हैं, कई बार टीचर्स उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। उसके एनेक्डोट मींस देयर आर सर्टेन यू कैन से मतलब ऑर्डिनरी नहीं है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट सिचुएशन जहां पर आपने बच्चे को देखा या पाया और आपने उस इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया, है ना। जैसे कोई बच्चा है पहले बहुत नॉर्मल बिहेव करता था, बट ही बिकम सो एग्रेसिव एंड फाइटिंग मेनी टाइम्स इन ए क्लास, छोटी छोटी बात को लेके बहुत झगड़ा करता है, तो आपने वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया कि एग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट इज बीइंग रिपोर्टेड और फाउंड इन दिस क्लास ड्यूरिंग दीज मेनी टाइम्स। तो आपने कहीं वो एनेक्डोट कहीं बना के कहीं उसके बारे में कुछ लिख के रखा है। सो ये जो सपोज किसी स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होते जा रहा है या ग्रेजुअली यू कैन फाइंड देयर इज अ मेजर चेंज इन द बिहेवियर, तो उसके जो एनेक्डोट्स होंगे, जो एपिसोड्स होंगे अलग अलग, उसको स्टडी किया जाता है ताकि आपको स्टूडेंट के बिहेवियरल चेंज में का रीजन को आप आइडेंटिफाई कर सकें। इज इट ओके? सो वी नीड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, तो वो भी उस टाइप की चीजें भी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में मेंशन होती हैं। तो रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ प्रेजेंट का ही नहीं बल्कि पास्ट परफॉर्मेंस को भी कहीं ना कहीं रखना जरूरी है। That is very important. Then only you can make a comparison of the past performance and the present performance. Okay? So in that situation, we call such record as a cumulative record. Okay? So an evaluation report to be more useful, and it should be cumulative in nature, presenting the results of past as well as present evaluation situations.
मे आई क्लियर अपॉन दिस पार्ट? मैंने 3-4 आपको एग्जाम्पल दिए कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड क्यूमुलेटिव है या नहीं। हेलो, Yes. अन्नपूर्णा मैम, आई थिंक आपका माइक ऑन हो गया है। हेलो, मेरा नहीं है, किसी स्टूडेंट का है। You are muted, I think. Yes. Hello, ma'am. You are muted. Ma'am, you are not audible. हेलो, Yes, ma'am. ma'am. Now we Yes, can ma'am. I'm hear now you. audible. I have rejoined. I don't know the reason, but it happens. Okay. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Fine. So you can see that today we have gone through with the 3 major characteristics of an ideal report card or an evaluation report. You can say that. May I know from you which are those 3 major characteristics? Ma'am, the first one is report card should be comprehensive. Then Yes. second, it should be understandable. And the Yes. third one is it should be cumulative. It should be cumulative. Fine. So अगर आपको हम एक टास्क दें, डिजाइन वन रिपोर्ट कार्ड, फाइन, एक रिपोर्ट कार्ड को डिजाइन करो जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दें, तो क्या आप डिजाइन कर पाओगे? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. हाँ, अंडरस्टैंडेबल में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे स्टूडेंट का आप देखिए रोल नंबर है, उसका उसका नाम है पूरा, उसके फादर्स का नाम है, ऑक्यूपेशन है, then you can say sometime annual income of the parent it is also being asked, then photograph of the student is also being asked, रिपोर्ट कार्ड में जो लोगो होता है स्कूल का वो भी लिखा जाता है ना, फिर बच्चे का एड्रेस लिखा जाता है, उसका ब्लड ग्रुप लिखा जाता है, देन उसके सिबलिंग्स के बारे में, उसके भाई बहन कौन कौन है घर में उनके बारे में लिखा जाता है, स्टेटस ऑफ पेरेंट्स मैरिज आजकल वो भी लिखा जाता है कि पेरेंट्स का मैरिज का स्टेटस क्या है। कई बार पेरेंट्स डाइवोर्सी होते हैं या सेपरेट रहते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आता है। तो बहुत सारे स्कूल्स में ये स्टेटस भी देखने को मिलता है, द स्टेटस ऑफ पेरेंट्स मैरिज। सो मैरिड हैं, अनमैरिड तो ऑफ कोर्स नहीं होंगे, बट मैरिड हैं या दे आर स्टेइंग अपार्ट, अपार्ट मींस दूर दूर रहते हैं, या सेपरेटेड हैं, सो देयर कुड बी मेनी सिचुएशंस, फाइन। सो वो सब, या सिंगल पेरेंट हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के फादर एक्सपायर हो गए या मदर एक्सपायर हो गई, तो सिंगल पेरेंट हैं, तो वो सब स्टेटस भी आजकल लिखा जाता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं उन सब चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन आजकल मांगी जाती है। देन जेंडर है, कास्ट है, देन लोकेलिटी है, एड्रेस है, वेयर द स्टूडेंट इज स्टेइंग, अबाउट दैट, ये सब चीजें भी आपको एक कंप्लीट वे में एक बच्चे को अंडरस्टैंड करने में
हेल्प करती हैं। तो ये सब पॉइंट भी आपके अंडरस्टैंडेबल वाले पॉइंट में आएंगे। सो मे आई क्लियर अपॉन दिस डिस्कशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, now you can Yes, see ma'am. that. Yes, now you can see that अगर मैं आपसे मैंने इतने अलग अलग इलस्ट्रेशंस दिए हैं आपको, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि रिपोर्ट कार्ड के एंड में हम लोगों के यहाँ पे क्लास टीचर एक रिमार्क लिखती थी, है ना? The teacher gives a overall remark of that particular term. जैसे स्कूल में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म तो आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है, ठीक है? 4 टर्म्स के अंदर हमको डिवाइड किया जाता था। सो फर्स्ट टर्म के बाद जब हमको रिपोर्ट कार्ड मिलती है तो टीचर एक रिमार्क लिखती है कि सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस टीचर ने लिखा। Average. तो ये परफॉर्मेंस जो लिखी, ये किस कंपोनेंट के अंडर आती है? क्या ये परफॉर्मेंस अंडरस्टैंडेबल के अंडर आएगी, या ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस के अंडर में आएगी, या क्यूमुलेटिव के अंडर में आएगी? किस में आएगी? Comprehensive. Comprehensive. नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या है? Understandable. Understand. ठीक है, Ma'am, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या है? कि आप जितने ज्यादा एस्पेक्ट्स को उसमें कवर कर सकें। सो इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. हेलो? और अगर आप आपने तीनों टर्म्स की परफॉर्मेंस देखी, भाई पहले टर्म में टीचर ने लिखा है वर्क हार्ड इन मैथमेटिक्स, इन रेस्ट द परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी, ठीक है? दूसरे टर्म में लिखा है कीप डूइंग वेल इन ऑल सब्जेक्ट्स, और थर्ड में लिखा है वेरी गुड। नाउ ये जो तीनों रिमार्क तीनों टर्म्स के हैं, ये क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बताता है कि आपने हर एक टर्म को, रिमार्क्स को आपने क्यूमुलेट किया। सो आर यू क्लियर विद दिस illustrations? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. We all are again meeting after 25 minutes. ठीक है, 25 मिनट के बाद वापस से हम 3 बजे फिर से मिलेंगे, और मैं ही मिलूंगी आपको अन्नपूर्णा मैम के साथ, ठीक है? तो तब के लिए आप थोड़ा आराम करें, टेक रेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड बाय। और मैंने लिंक वहां शेयर किया, आपको मेल भी आया होगा। आई हैव शेयर्ड द लिंक, लिंक शेयर करूं या आप अपने मेल में जाके कर लेंगे? बोलो। मैम मीटिंग मीटिंग में है। हाँ, लिंक मैम शेयर मीटिंग ठीक है, मैं लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिगार्ड डाल में दूंगी, है? Yes, ma'am. WhatsApp Yes, group में ma'am. लिंक शेयर कर दो। है ना? तो वो इजी होगा। मीटिंग किसके रिगार्डिंग है? ओरिएंटेशन, सॉरी आपका ओरिएंटेशन नहीं, आई एम सॉरी, सेमेस्टर 3 वालों के साथ है। आई एम रियली सॉरी, मुझसे स्किप हो गया, है ना? सो दैट इज देयर इज ओरिएंटेशन ऑफ सेमेस्टर 3 स्टूडेंट, तो उनके साथ मुझे 3 बजे ज्वाइन होना है, बिकॉज आजकल आपको पढ़ा रही हूँ ना असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसलिए कुछ टॉपिक्स वहां पर वापस से हमको टच करने होते हैं। फाइन, सो यू कैन टेक अ लीव, विश यू ऑल अ गुड डे। अब वापस मिलेंगे हम मंडे। फाइन।